मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव, एक यात्रा। मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव एक साझा ख्वाब, एक छोटी सी पहल, एक विनम्र प्रयास है मीडिया की दुनिया से देश के सामान्य नागरिकों को परिचित कराने का। मीडिया किस तरह से काम करता है, मीडिया को चलाता कौन है, क्या मीडिया के खाने और दिखाने के दांत अलग अलग हैं, मीडिया को हम कितना जानते हैं और मीडिया को हमारे बारे में कितना पता है, मीडिया का हमारी जिंदगी में कितना दखल है, मीडिया से हमारा कितना सरोकार है और मीडिया को हमसे कितना लेना देना है, मीडिया किसकी खाता है और किसकी बजाता है, मीडिया कैसे हमें नचाता है और खुद कैसे किसके इशारों पर नाचता है, मीडिया की शब्दावली क्या है और क्या इसके मायने मतलब है। यानी मीडिया के बारे में वह सब कुछ जिसका आम आदमी की जिंदगी से सरोकार है, उन सभी पहलुओं से हम आम जन को परिचित कराएं, यही मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव का उद्देश्य है। यह सुनने में जितना सरल लगता है, इस रास्ते पर जब कदम रखा तब समझ में आया कि यह उतना ही कठिन है। लेकिन अगर उत्साह, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिले तो फिर कठिनाई नहीं रह जाती। दरअसल मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव की गंगोत्री तो मीडिया मॉनिटर है, जहां से इसकी शुरुआत हुई। मीडिया मॉनिटर एक ओपन डिस्कशन फोरम है जिसकी शुरुआत नवंबर 2020 में की गई। इस फोरम में प्रेस्टीज कॉलेज इंदौर के मीडिया स्टूडेंट्स द्वारा मीडिया प्रोफेशनल्स, एकेडमिशियंस, रिसर्च स्कॉलर्स और कम्युनिटी मीडिया रिपोर्टर्स से मीडिया के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और सवाल जवाब किए जाते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसका संचालन स्टूडेंट्स द्वारा ही किया जाता है। इस फोरम में देश विदेश के कई जाने माने विद्वान और पत्रकार भाग ले चुके हैं। Hello and greetings from the United Nations Human Rights Office in Geneva, Switzerland. My name is Scott Campbell and I lead the work of the office on digital technology and human rights. We're very happy to join you in celebrating the first anniversary of the Media Dictionary. We send you our best wishes for success and growth of this important project. In order to be able to maximize the benefits of a free press and to avoid becoming a victim of misinformation or disinformation, it's crucial to increase media awareness and media literacy. And in particular, as we're now living in a digital age, social media offers us new opportunities to receive information, to participate, to learn, to explore, and to connect with opportunities for better health, jobs, or education. But at the same time, there's much misinformation and disinformation on social media that can be very harmful, as we're all aware, inciting to violence, inciting to discrimination, inciting to hatred. So media and digital literacy are really important to be able to protect yourself and to enable you to take full advantage of the opportunities that social media can provide. And this speaks to the importance of the Media Dictionary and of having a better understanding of the media, both offline media and social media. So congratulations to all involved in this important project, and we wish you a very productive and fruitful second year. I'm called Roseline Oba from Cameroon. I am the National Coordinator of the Cameroon Community Media Network. I think the media across the world looks like a global village. Reason why I joined my initiative with that of India media landscape to congratulate you for this wonderful initiative of coming up with a media dictionary. I can remember some media jargons and words like byline, copy editor, freelancer, lead, blogger, marketing. I can also think of terms like broadcast, inverted pyramids, the 5 W's and 1 H. We also have jargons like a print, a reporter, a contributor, editorial. You have so many of them. News lead, the kicker, the scoop. These are some of the words that come in from time to time to spice up the way we communicate within the media. And so I want to use this opportunity to actually thank the Media Dictionary team in India
for the wonderful initiative. I think it's so relevant on our global scene. So I want to salute you all and to say that Cameroon Community Media Network is definitely going to join you to make sure that at a local position, community media can be able to come up with more media jargons and words in local languages. So we are going to furnish the media dictionary with media terms, media jargons in local languages that is equally going to add more to what you already have. So congratulations to you and your team, and I pray that together we can be able to globalize our media landscape and give it some relevance. Thank you very much and God bless you all. Cheers. इन्हीं चर्चाओं के दौरान यह लगा कि मीडिया में इस तरह की जन उपयोगी चर्चा सिर्फ मीडिया स्टूडेंट्स तक ही सीमित क्यों रहे, बल्कि इसकी जरूरत तो देश के गांव, कस्बों, शहरों में रह रहे हाशिए पर के लोगों, मजदूर, किसान, दस्तकार, छोटे दुकानदार, घरेलू महिलाओं और युवकों को भी उतनी ही है जितनी कि स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों को है, क्योंकि आज मीडिया तो हर जगह है और हर किसी को प्रभावित कर रहा है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तो मीडिया हमारे बारे में इतना डेटा इकट्ठा कर चुका है और लगातार करता भी जा रहा है कि वह हमारे डेटा का विश्लेषण करके हमारे व्यवहार का सटीक अनुमान लगाकर हमें प्रभावित कर सकता है। एल्गोरिदम और डेटा एनालिसिस विज्ञापन कंपनियों के लिए बड़े फायदे की चीजें हैं, जिससे वो हमें उसी तरह के विज्ञापन देकर लुभा सकें जो हमें पसंद आए। इसका उदाहरण कैम्ब्रिज एनालिटिका का डेटा स्कैंडल है, जिसके तार 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर आने के निर्णय से है। इससे स्पष्ट होता है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जिनके पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, डेटा साइंटिस्ट, साइको एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट की बड़ी फौज है, जो सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए हम पर कड़ी नजर रखते हैं, साथ ही सत्ता प्रतिष्ठानों के फैसलों को अपने हक में प्रभावित करते हैं। उन्हें जानना और समझना आज कितना जरूरी हो गया है। मीडिया मॉनिटर में होने वाली चर्चाओं से हमें लगा कि सरल शब्दों में मीडिया के बारे में आम लोगों तक जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है। मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव की शुरुआत 15 मार्च 2021 से आम बोलचाल की भाषा हिंदी में मीडिया टर्म्स जैसे मीडिया पोलराइजेशन, मीडिया कन्वर्जेंस, सेल्फी मेनिया, मीडिया ट्रायल, टीआरपी आदि का मतलब समझाने से हुई। कुछ महीनों के बाद यह विचार आया कि दूर दराज के इलाकों और खासकर महिला वर्ग में हिंदी की खड़ी बोली की अपेक्षा स्थानीय बोलियों और भाषाओं जैसे अवधी, भोजपुरी, मराठी, बांग्ला, उड़िया, मलयालम, कन्नड़ आदि की पैठ कहीं ज्यादा है। इसीलिए क्यों ना इन भाषाओं और बोलियों में लोगों को मीडिया की जानकारी दी जाए। इसके बाद ही मीडिया डिक्शनरी का रूपांतरण हिंदी के साथ साथ अवधी, मराठी, बागड़ी, अंग्रेजी, डोगरी, भोजपुरी, पंजाबी, बांग्ला, कश्मीरी, राजस्थानी, गढ़वाली, हरियाणवी, मलयालम, बघेली, कन्नड़ और फ्रेंच भाषा के साथ साथ ठेठ बनारसी बोली, ओडिया, अंगिका और मैथिली भाषा सहित 21 बोलियों और भाषाओं में शुरू हुआ। आज मीडिया डिक्शनरी परिवार में 30 से ज्यादा मीडिया शिक्षक, स्कॉलर्स, विद्यार्थी एवं पत्रकार उत्साहित होकर स्वतः स्फूर्त ढंग से मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारा यह प्रयास है कि मीडिया डिक्शनरी की यह पहल भारत की ज्यादा से ज्यादा भाषाओं और बोलियों में शुरू हो। मीडिया डिक्शनरी सुनते ही लगता है मानो यह एक ऐसा शब्दकोश है जिसमें मीडिया के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी दी गई होगी। जी हाँ, यह एक अनोखा प्रयास है भावना पाठक का। अक्सर मीडिया शिक्षण के दौरान मैंने ये महसूस किया है कि विद्यार्थियों को मीडिया संबंधी अभिव्यक्तियों की, शब्दों की मूलभूत जानकारी का
अभाव रहता है। उस अभाव की पूर्ति की दिशा में मीडिया डिक्शनरी पहल उन हजारों मीडिया विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से मीडिया के प्रति एक समझ को विकसित किया जा सकता है। मीडिया डिक्शनरी एक ऐसा प्रयास है, हम रोजमर्रा के जीवन में मीडिया में काम करते हुए अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता है। मीडिया डिक्शनरी एक अवसर देती है आपको मीडिया के बारे में उस समझ को विकसित करने के लिए। 1 साल की यह रोमांचक, सारगर्भित, उपयोगी यात्रा और सबसे बड़ी विशेषता इस यात्रा की है कि इन मीडिया डिक्शनरी की विभिन्न अभिव्यक्तियों का देश की अनेक भाषाओं और बोलियों में अनुवाद निश्चय ही भावना पाठक का यह एक ऐसी अभिनव पहल है, योजना है, एक रचनात्मक अभियान है जिसने मीडिया साक्षरता की दिशा में, मीडिया को सही संदर्भ में समझने की दिशा में एक विशिष्ट भूमिका निभाई है। 1 साल पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस 1 वर्ष के दौरान बार बार यह सवाल आता रहा है कि न केवल मीडिया से संबंधित जानकारी आम लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, बल्कि उन्हें मीडिया और उससे मिल रही सामग्री पर सवाल उठाने, उसका तर्क संगत विश्लेषण करने और अपनी आवाज अपने मीडिया यानी कम्युनिटी मीडिया द्वारा उठाने के लिए आखिर कैसे प्रेरित किया जाए। इस दिशा में प्रयास करने के लिए मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव में एक नई शुरुआत हुई जिसका नाम है पुत्तन का सपना, मीडिया साक्षर हो भारत अपना, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक गांव का साधारण युवक पुत्तन सपना देखता है कि मीडिया कैसे आम लोगों की जिंदगी से सरोकार रखता है। पुत्तन का सपना की यह सीरीज आम जन के जिंदगी में मीडिया के गहरे जुड़ाव के तमाम पहलुओं को उजागर करती है। पुत्तन तरह तरह के सपने देखता है। कभी देखता है कि उसके गांव में मीडिया क्लब खुल गया है जहां गांव के युवक युवतियां इकट्ठे होकर न केवल अखबार पढ़ते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, बल्कि वो खबरों का विश्लेषण भी करते हैं और मीडिया में गांव कस्बों की खबरों की अनुपस्थिति पर अपना मीडिया खड़ा करने का प्रयास भी करते हैं। कभी वह देखता है कि उसके गांव में सिटीजन जर्नलिज्म यानी नागरिक पत्रकारिता पर कार्यशाला हो रही है, तो कभी वह देखता है कि कठपुतली नृत्य के माध्यम से लोगों को मीडिया लिटरेसी का महत्व बताया जा रहा है। कहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों में मीडिया जागरूकता फैलाई जा रही है, तो कभी दशहरा मेले में निकाली गई चौकियों में भगवान राम मीडिया साक्षरता के तीर से मीडिया अज्ञानता के रावण का वध कर रहे हैं। Happy first birthday to Media Dictionary. Like all babies, I think Media Dictionary is taking baby steps towards something very important. The very idea of Media Dictionary drew my attention to it, and that is the whole reason that I got involved in it to a certain extent. Because it recognizes the need for communities around us to be as familiar with the workings of the media as media professionals do. Media literacy as a term has been hijacked and has been misunderstood in lots of ways. But merely by defining literacy for what it is, which is a tool by which to know our world, Media Dictionary dispels that entire confusion around the definition of media literacy. It has a long way to go because the first year is always a year of the first iteration. As iterations follow, as people get more and more engaged in it, the path for Media Dictionary should be very clear, to make and create and help
a media literate community around us. Again, congratulations and all the best. मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव का एक और प्रयास है मीडिया टर्म डोनेशन कैंपेन, जिसमें मीडिया के विद्वानों एवं अनुभवी मीडिया शिक्षकों द्वारा मीडिया से संबंधित विभिन्न टर्म्स को बड़े ही रोचक ढंग से उदाहरणों के साथ समझाया जाता है। इस पहल की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गई कि मीडिया के प्रसिद्ध विद्वान एवं अनुभवी मीडिया शिक्षकों के तजुर्बे और ज्ञान का लाभ जन सामान्य को भी मिल सके। हम जानते हैं कि मीडिया अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रभावित कर रहा है तो वो हैं युवा और बच्चे। अनुभव की कमी होने की वजह से इन दोनों को बहलाना फुसलाना कहीं ज्यादा आसान होता है। मीडिया के लोग, खासकर विज्ञापन जगत के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों की जिद के आगे अधिकांश माँ बाप झुक जाते हैं और इसीलिए बच्चों के आइटम्स के जो विज्ञापन हैं वो खूब आते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री के इतनी तेजी से फलने फूलने की वजह भी यह है और यह समाज के लिए खतरे की भी घंटी है। इसे देखते हुए ही मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव में इन खतरों के प्रति बच्चों और उनके साथ साथ उनके माता पिता को आगाह करने का प्रयास मीडिया लिटरेसी फॉर किड्स के जरिए शुरू किया गया, जिसे 9 वर्ष की प्राइमरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची वामिका पंड्या ने शुरू किया। सोशल मीडिया की आज जो स्थिति है वह बिना चौकीदार के गेट की है। कोई भी आकर धड़ल्ले से बिना किसी रोक टोक के मनमानी कर जाता है। तभी तो सोशल मीडिया को अफवाहों का बाजार तक कह दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मीडिया के इस लोकतांत्रिक स्वरूप को समाज के हित में बनाए रखने के लिए नागरिक पत्रकार यानी सिटीजन जर्नलिस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और जितनी जरूरत आज समाज को नागरिक पत्रकारों की है उतनी शायद कभी न रही हो। इसे ही ध्यान में रखकर मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव की तरफ से नागरिक पत्रकारिता का प्रशिक्षण शुरू करने का प्रयास किया गया। ये नागरिक पत्रकार ही समाज के उस तबके के बीच मीडिया साक्षरता फैला सकते हैं जो औपचारिक शिक्षा से दूर गांव गिराव में है। मीडिया के बारे में लोगों को उनकी अपनी बोली भाषा में जानकारी देना, नागरिक पत्रकारिता के साथ साथ लोगों को अपना खुद का कम्युनिटी मीडिया खड़ा करने के लिए प्रेरित करना ही मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव का उद्देश्य है, ताकि ग्रामीण युवा पुत्तन का मीडिया साक्षर भारत का सपना पूरा हो सके। बस इतनी सी अरज हमारी सुन लीजो सब कोए, कि बस इतनी सी अरज हमारी सुन लीजो सब कोए, मीडिया साक्षर बने बिन गुजर बसर ना होए।